Hello, my dear students. We both welcome you to the official YouTube channel of Chanakya Defense Group Today we are going to discuss the mathematics and science examination previous year question paper of RMS 6th class. So we are going to continue our class. So first question from the previous year is that how much is 3/4 of whole day and night? And their options are 3 hours, 12 hours, 18 hours and 10 hours. So as we have question that how much is 3/4 of whole day and night? As we all know that one day and night is equals to 24 hours. और हमें पूछा है उसका 3/4 क्या होता है. That means we have to tell 3/4 of 24. तो आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कुछ डिवाइड होता है तो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट. सो जस्ट लाइक 4 ones are 4 and 4 6 are 24. So in denominator we have nothing. In the numerator we have 3 into 6, that is 3 into 6 is 18 and we have hours, तो हमारी units होंगी hours. So now we are going to check the option. So that is in the C option, that is 18 hour. So that is our correct option. ऐसे ही आपने check करना है and then solve करना है. Next, move toward the next question. If the divisor is 51, quotient is 16 and remainder is 27, then dividend is what? क्वेश्चन में आपको दिया है कि डिवाइजर आपका इतना है, क्वेश्चन आपका 16 है एंड जो रिमाइंडर है दैट इज 27. यू हैव टू फाइंड द डिविडेंड. सो एंड देयर ऑप्शंस आर 483, 94, 1393 and 843. As we all know that कि हमें डिविडेंड निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. So this is the formula to find the dividend and we have question that is 16, divisor is 51 and the remainder is 27. तो अकॉर्डिंग टू द सिंप्लीफिकेशन जैसे बोर्ड मास में होता है कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है देन ऐड करते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई 16 एंड 51 यू गॉट 816 एंड देन प्लस करेंगे आप उसमें 27 यू गॉट 843 which is the correct answer and that is in our D option. So D option is the correct answer for this question. Now next question we have in the next question of previous year paper is that if the perimeter of a square is if the perimeter of square is 28 meter, its area is what?
तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमारे पास स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर जो है 28 मीटर है, सबसे पहले हमें पता है कि स्क्वायर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है देन वी हैव टू फाइंड देयर साइड। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इज अ फिगर विच इज हैविंग सेम साइड और ऑल साइड्स आर सेम, मतलब ये अगर साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, एंड दीज आर ऑल सेम। अगर ये मान लो 2 है तो ऑल अदर आर ऑल्सो 2, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। हमें क्वेश्चन में साइड नहीं पता है बट हमें उसका पेरीमीटर पता है, दैट इज 28। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द साइड, एंड टू फाइंड द साइड वी हैव टू डिवाइड 28 by 4. So side is equals to 28 is divided by 4, which is equals to 7. So side of a square is 7 meter. But हमें साइड नहीं पूछी है, हमें पूछा है कि what is area. So area of a square is equals to side into side, और हम बोल सकते हैं side square. If you do that, so you have to multiply 7 meter into 7 meter, so that is 49 meter square. So that is the area of a square जो कि हमें पूछा था. Let us check their option. Their options are 56 meter square, 49 meter square, 27 meter squares and 14 meter square. So you can check that our B option is 49 जो कि हमारा आंसर आया था, तो B option is the correct answer. Let us move toward the next question. And the next question is that which one is the smallest fraction? अब उन्होंने बोला है which one. जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें चेक करने होते हैं उसके ऑप्शन सबसे पहले. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 4/5, क्योंकि which one बोला है मतलब इनमें से, तो ऑप्शन में से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है आपकी सबसे छोटी है. आप सभी बोल रहे होंगे कि 2/3 है या 4/3 है, क्योंकि 10/50 तो सबको बड़ी लग रही है. एज वी नो दैट कि फ्रैक्शन का मतलब होता है सबसे कम, मतलब जब आप उसको डिवाइड करके स्मॉलेस्ट करना है, मतलब पहले आपको उसको डिवाइड करना होता है. ऑल टर्म्स आर डिविजिबल, ओनली दिस वन इज नॉट डिवाइडेड. तो लेट अस डिवाइड इट फर्स्ट. एज नो दैट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर जीरोस हो तो वो हमारे पहले कैंसिल आउट होते हैं. अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1/5. अब आपको पता है अगर न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपकी जो फ्रैक्शन होती है वो सबसे छोटी होती है. यहाँ पे अब न्यूमिनेटर क्या है आपके पास 4, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, और यहाँ पे आपकी जो न्यूमिनेटर है वो सबसे छोटा है, दैट इज 1. एंड हियर दैट इज योर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, दैट इज 1/5, and that is your correct answer. Let us move toward the next and the last question of mathematics class, and that is the circumference. Circumference जब भी होता है that is about the circle. So the circumference of a circle is 44 सेंटीमीटर. जब भी सर्कमफ्रेंस की बात होती है तो मतलब पेरीमीटर ही होता है, बट जब हम सर्कल और जो भी सर्कुलर चीजें होते हैं उसकी पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया. So let us check their options first. That first option is 160 centimeter square, and the second option is
158 centimeter square, and the third option is 156 centimeter square, and the fourth option is 154 centimeter square. So let us check what is the formula to find the circumference. So circumference of circle is equals to 2 pi r. अगर हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है तो वी हैव टू फाइंड द रेडियस, बट क्वेश्चन में क्या है, हमें ऑलरेडी सर्कमफ्रेंस गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 44, एंड नाउ अगर हमें सर्कमफ्रेंस पता है दैट मींस वी हैव टू फाइंड द रेडियस. सो दैट इज 2 into 22/7. So the value of pi is always given, that is 22/7, and we have to find first radius because we have to find the area, और एरिया के लिए हमें रेडियस जानना बहुत जरूरी है. तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे. इफ एनीथिंग इज डिवाइडेड, अगर इक्वल्स टू की दूसरी साइड आप लिखो तो वो मल्टीप्लाई होता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है. सो टू फाइंड द रेडियस वी हैव टू सॉल्व इट. जैसे 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 2 2s are 4. So 22 1s are 22 and 22 1s are 22. So that means radius is equals to 7 centimeter. Now अब हमने रेडियस निकाल लिया है, हमें पूछा क्या है, एरिया. So area of a circle is, that is pi r square. R square मतलब आपको रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. As know that the value of pi is 22/7, so radius is 7 into 7. 1 7 से एक 7 जो है वो कैंसल आउट हो गया, and you have left 22 into 7. When you multiply 22 into 7, you got 154. And as you know that area जब भी होता है their unit is in square, so that is centimeter square. और अगर आप ऑप्शन चेक करो दैट इज इन योर डी ऑप्शन विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ द सर्कल. सो दैट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. नाउ साइंस क्लास. अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के बीच में एज यू नो हमें क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कम आते हैं. हमें हर बार पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो साइंस के आते हैं. तो अभी मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो थोड़े थोड़े हम सोशल स्टडीज में भी हैं, बट वो थोड़े से साइंस के साथ भी मिलते हैं. इसीलिए मैं आपके लिए साइंस और सोशल के थोड़े से क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे करके क्लब करके लेके आई हूँ. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें उसके पहले ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आप अपना पेपर अच्छे से करें और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें. इसीलिए हम लोग आपके लिए एक छोटी सी कोशिश लेकर आए हैं जिसमें हम आपके लिए ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करवाएंगे. सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास. व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास. ग्लास जो है ये इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मतलब ये किससे बनता है, बेसिकली हमें वही निकालना है. ऑप्शन में क्या था हमारे पास, ऑप्शन में इट वाज बोरैक्स, सिलिका, एप्सम एंड सोडा ऐश. सो अगर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है सिलिका. सिलिका के साथ ही सिलिका जो है ये जब हम ज्यादा सिलिकेट्स को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, उससे हम ग्लास को बना सकते हैं. ठीक है, अब एक बार ये भी देख लेंगे कि ये वाले आंसर जो है ये रॉन्ग क्यों है. ये रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि एप्सम जो है, एप्सम एक सॉल्ट है जिसको हम सिर्फ बेदिंग वगैरह में ही यूज करते हैं. इसको हम बेदिंग के लिए या फिर कुछ भी क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. सोडा ऐश जो है ये तब निकलता है जब हम ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हैं. मतलब अगर हम ग्लास को बनाएंगे किससे, सिलिका से, और इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा सोडा ऐश इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. मतलब ये एक तरह से वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हो सॉल्ट्स वगैरह को या फिर अपने सोप्स वगैरह को या डिटर्जेंट्स वगैरह को बनाने के लिए. तो इसको हम फर्दर इस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. अगर हम बोरैक्स की बात करें तो बोरैक्स एक तरह से हमारा क्लीनिंग एजेंट होता है. ठीक है, इसको हम आई वॉशेस वगैरह में जो है वो यूज कर सकते हैं बोरैक्स को. इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दैट
which organ of the body purifies our blood? Which organ purify our blood? कौन सा ऑर्गन जो है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है? इसमें फर्स्ट वन इज किडनी, सेकेंड वन इज लिवर, थर्ड वन इज स्प्लीन, फोर्थ वन इज हार्ट। ठीक है, अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर जो है ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई नहीं करता है, इसकी जगह लंग्स जो है वो लिवर को प्योरीफाई करती थी। ठीक है, बट यहाँ पर लंग्स का ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? हार्ट लगाएंगे, क्योंकि प्योरिफिकेशन करने के बाद वो क्या करता है, वो वापस उसको हार्ट में भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि वो बॉडी में सप्लाई हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। ठीक है, जिसमें सेल जो है वो डीकंपोज होते हैं जाकर के। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी क्या करता है? किडनी यूरिन फॉर्मेशन करता है, मतलब कि अगर हमारे वाटर जो है हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सक्रीट आउट करने का जो काम है वो किडनी करता है, किडनी के नेफ्रॉन्स करते हैं। इसकी अगर हम फंक्शनल यूनिट बताऊं मैं आपको तो वो नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो ये आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट्स जो है वो याद कर लेने हैं, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व हो जाए आपसे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, दैट विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनेमोमीटर जो है वो क्या करता है। ठीक है, व्हाट इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर? इसको आप थोड़ा सा सोशल में भी कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इसमें था रेन, सेकंड ऑप्शन इसमें था विंड स्पीड, थर्ड ऑप्शन था इसमें टेम्परेचर, और जो फोर्थ ऑप्शन था इसमें वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो अगर मैं एनेमोमीटर की बात करूं तो एनेमो वर्ड हम किसको रेफर करते हैं? हम विंड को रेफर करते हैं, है ना। तो देयरफॉर यहां से सीधा ही डायरेक्टली वी कैन गेट आवर आंसर, दैट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। अगर मैं बाकी ऑप्शंस बताऊं कि ये गलत क्यों थे, तो इसीलिए गलत है क्योंकि रेन जो है इट इज मेजर्ड बाय रेन गॉज। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, और वी कैन से पायरोमीटर। थर्मोमीटर से हम नॉर्मल थोड़ा सा कम लेवल का टेम्परेचर मेजर करते हैं, और पायरोमीटर से हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर जो है हमसे पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट मेक्स आवर मसल्स? हमारी मसल जो हैं वो किससे बनती हैं? इसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे, एक फैट्स था, एक कार्बोहाइड्रेट्स था, एक आपके पास प्रोटीन्स था, और एक ऑप्शन जो था हमारे पास दैट इज शुगर्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बाय बिकॉज मसल्स पूछ रहे हैं ना, मसल्स किससे बनती हैं। तो आपके अगर बड़े भाई बहन जिम वगैरह जाते होंगे तो आपने देखा होगा मसल्स बनाने के लिए वो क्या करते हैं? प्रोटीन शेक्स लेते हैं। तो यहां से आंसर सीधा ही लग जाएगा प्रोटीन। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, इसीलिए प्रोटीन यूज किया जाता है मसल्स के लिए। ठीक है, मसल जो है वो प्रोटीन बनाती प्रोटीन जो है वो मसल्स बनाता है आपका। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इट इज विच कलर ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट? लाइट का कौन सा कलर जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है? विच कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होता है? स्कैटर का मतलब है फैलना। ठीक है, स्कैटर का मतलब होता है फैलना। यहां पर ऑप्शंस में क्या था? एक तो ब्लू था, एक था व्हाइट, एक था आपके पास रेड, और एक था आपके पास वॉयलेट। ये चार ऑप्शंस थे हमारे पास। अब अगर मैं
स्कैटर की बात करूं, देखो यहाँ पर आधे बच्चे ना रेड ऑप्शन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि रेड बच्चों को ऐसा लगता है रेड ज्यादा फैलता है। रेड फैलता नहीं है, रेड की वेवलेंथ लंबी होती है, मतलब कि रेड जो है कलर ये दूर तक ट्रेवल कर सकता है, ये ऐसे फैलता नहीं है। फैलता कौन है? फैलता ब्लू है, ठीक है। सो ब्लू कलर जो है ये क्या करता है, ये सबसे ज्यादा स्कैटर कर सकता है। व्हाइट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाइट तो पहले ही 7 कलर्स का मिक्सचर है ना, जिसको आप विब के और से याद कर लेते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। और वॉयलेट की तो सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो वो फैल भी नहीं सकता, वो ज्यादा चल भी नहीं सकता, तो इसीलिए ये वाले ऑप्शन गलत है और ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज which is the most lightest metal in the world भी है आगे। कौन सी जो मेटल है वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा हल्की है। ऑप्शन में क्या था आपके पास? एक था लिथियम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास था दैट वाज कॉपर, थर्ड ऑप्शन वाज लेड एंड फोर्थ ऑप्शन वाज एल्यूमिनियम। मतलब इस तरह से कुछ ऑप्शंस थे, शफल हो सकते हैं, ये एबीसी इधर उधर हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट इज, इसमें बोल रहे हैं कौन सी मेटल सबसे लाइटेस्ट है। सबसे पहले तो आपने ये वर्ड याद रखना है, मेटल। नॉन मेटल की बात नहीं हो रही है ना। अगर नॉन मेटल की बात होती हो तो फिर कौन होता है सबसे ज्यादा लाइटेस्ट? फिर होता है सबसे ज्यादा लाइटेस्ट हाइड्रोजन। और अगर हम ऐसे भी बोलें कि सबसे ज्यादा हल्का एलिमेंट कौन सा है, देन ऑल्सो हाइड्रोजन। मतलब अगर मेटल नॉन मेटल को मिला के बोलो तो भी हाइड्रोजन, नॉन मेटल को बोलो तो भी हाइड्रोजन, बट ये मेटल की बात कर रहा है। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में लिथियम इज द मोस्ट लाइटेस्ट मेटल। वाई? बिकॉज लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। तो ये क्या, पहले पे हाइड्रोजन, फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम। तो इस तरह से 1 2 3। अब देख लो ये सबसे लाइटेस्ट था, बट ये क्या है? ये नॉन मेटल है। हीलियम जो है ये सेकंड में आएगा, बट ये भी क्या है? नॉन मेटल है। उसने मेटल पूछा है तो मेटल इज द लिथियम, थर्ड लिथियम इज द मोस्ट लाइटेस्ट मेटल, ठीक है। तो आज के लिए हम कुछ इतने ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।